गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस, उसके कॉज, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। Series combination and second is parallel combination। ठीक है बच्चों, अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो बच्चों, जब किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से बच्चों, एंड टू एंड कनेक्शन, द एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर R1 is connected to the end of resistor R2, the end of resistor R2 connected with the end of resistor R3 and so on, then this grouping is known as series grouping, or you can say this combination is known as series combination. And suppose this combination of resistance is connected with a cell or a battery, then you can see a current I is flowing through each of these resistors, and let the potential difference of this cell is V, and let the V1 be the potential difference across first resistor, V2 with the potential difference across second resistor, and V3 is the potential difference across third resistor। बच्चों, जैसे जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो होता है क्या बच्चों, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है उन सब के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम होती है, सेम करंट फ्लो होती है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होगा। तो सपोज करो जो इनमें करंट फ्लो हो रही है इन सारे रेजिस्टर्स से, उसको हमने आई एज्यूम कर लिया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन या across these three resistors are V1, V2 and V3 respectively. So as we can see, the total potential difference applied V is equal to the drop across, the potential drop across R1, R2 and R3. Therefore we can say V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now what is V1? Potential difference according to Ohm's law. हमने बच्चों ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टर। देयरफॉर V1 becomes I into R1, क्योंकि बच्चों V1 जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, तो देयरफॉर R1 into I is the value of V1. Similarly V2 becomes I into R2 and plus I into R3. Now what is V? V becomes total resistance। इसको हम सिंप्लीफाई, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। इन तीनों रेजिस्टर्स को हमने कंबाइन कर लिया और सपोज करो इनसे हमने एक रेजिस्टर बना दिया। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर इज RS and the current flowing through the circuit is I, which will be equal in the given figure, and the potential difference is V. Then the value of potential difference is equal to current flowing through the conductor into the resistance, which means RS. Therefore RS becomes R1 plus R2 plus R3। तो बच्चों, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इट मींस नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टर is equal to the algebraic sum of individual resistance. It means R1 plus R2 plus R3. सपोज करो एक और रेजिस्टर कनेक्टेड है तो प्लस R4 हो जाएगा, एक और कनेक्टेड प्लस R5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा सीरीज ग्रुपिंग होती है। तो ये हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग। नाउ वी आर मूविंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सपोज करो वी हैव थ्री रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर as such in the figure, and applied connected the cell is of V volt is connected across this combination,
let the potential difference of this cell is V. The resistor, first resistor R1, second R2 and third is R3. Now suppose a current I is supplied from the cell. As you can see, there is a branching in the cell. It means three currents divided in three different branches. Let the current flowing through the resistor R1 is I1, the current flowing through the resistor R2 is I2, and the current flowing through the resistor R3 is I3. बच्चों सपोज करो सेल से I करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है बच्चों की करंट, ये जो ब्रांच है तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जो करंट है बच्चों की भी तीन पार्ट में डिवाइड होगी. I1 फर्स्ट ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में I2 और थर्ड ब्रांच में I3. फिर बच्चों यहाँ पे देखिए ब्रांच कंबाइन हो रही है, तीनों I1 ऐड हो, I2 I3 तीनों ऐड होके फिर बच्चों वही करंट मिल जाएगी हमें I. तो कुछ इस तरह का ग्रुपिंग अगर होती है तो इसमें बोलते हैं बच्चों पैरेलल ग्रुपिंग, और यू कैन से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. एज यू कैन सी these resistors connected in parallel across a potential difference of V volt. It means the potential difference across each of the resistor will be same. जब बच्चों पैरेलल कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किए करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टर विल बी इक्वल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, बट देयर विल बी सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर थ्रू द रेजिस्टर्स. तो बच्चों जब सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे करंट की वैल्यू सेम होती है अक्रॉस all these resistors, और potential difference different होता है. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब 3 और 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, या 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा. और वो इक्वल होगा हमेशा किसके इक्वल बेटा, जितना हमने बाहर से अप्लाई किया होगा. एक्सटर्नल सोर्स का जितना वोल्टेज होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों के क्रॉस होगा या चारों के क्रॉस होगा, जितने भी इस ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे. और करंट सब में डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा. वोल्टेज therefore as you can see the current is distributed along the three branches. Therefore we can say I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now what is I1? According to Ohm's law, V is equal to IR, or we can say I is equal to V upon R. Now what is I1? I1 becomes potential drop across R1 upon resistance of that conductor, which is R1. Similarly, V upon R2 plus V upon R3. बच्चों तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है कि तीनों जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो भी होगा पैरेलल के अक्रॉस वो सारा इक्वल होगा. और किसके इक्वल होगा, जो हमने अप्लाइड एक्सटर्नल सोर्स में जो हमने अप्लाइड किया हुआ है. दिस इज द कॉम्बिनेशन. एंड सपोज करो बच्चों इनको हमने तीनों रेजिस्टेंस कंबाइन कर लिया, दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज Rp, connected across the same source V and the current I is flowing through the circuit. तो बच्चों आप सपोज करें तीनों को मैंने कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस बना दिया, which is Rp, और बाकी सारे अरेंजमेंट हमने सेम रखे हुए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग Ohm's law? We can say I is equal to applied voltage is V, and what is the effective resistance? It is Rp. Therefore it becomes V upon Rp. तो V कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा. It means 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. बच्चों ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो जब सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलता है हमें R1 plus R2 plus R3 का अलजेब्रिक सम कर लेते हैं. और जब हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हमको उनका रेसिप्रोकल करना होता है. रेसिप्रोकल ऑफ R1, रेसिप्रोकल ऑफ R2, रेसिप्रोकल ऑफ R3, और फिर उसको अलजेब्रिकली हम ऐड कर देते हैं और वहां से मिल जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो बच्चों ये आपको शायद समझ में आ गया हो अच्छे से. अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. तो सपोज करो बच्चों we have a question in which we have two resistors connected in series through a cell of potential difference 10 volt. The two resistors R1 has a value of 2 ohm and R2 has a value of 3 ohm.
और ये हमारे पास एक सर्किट है ओपन जिसमें दो रजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड है सीरीज में, एक ही वाली 2 ओम है, एक ही 3 ओम है, और एक्सटर्नल सर्किट में हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो अब हमें सपोज को फाइंड करना है। फर्स्ट करंट in the circuit, and suppose second potential difference across R1 and R2। तो बच्चों में दो टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले हमें सबसे पहले बच्चों में क्या फाइंड करना, थर्ड टर्म एक और लिख लेते हैं बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें बच्चों करंट फाइंड करनी है सर्किट की, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस R1 और R2, और हमें फाइंड करना है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए बच्चों, करंट और ये सारी टर्म्स हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से आता है, सबसे पहले हमारा एम होगा कि वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे उनका इक्विवेलेंट, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, these two resistors are connected end to end, therefore this is the series looping of two resistors, therefore we can say by formula the resistance of these combination it becomes R1 plus R2। अभी पढ़ा था बच्चों में। So it means the value of R is 2, R1 is 2 and R2 is 3, it becomes 5 ohm। It means what is the equivalent resistance of the combination? It is 5 ohm। ये हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब हम सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं बच्चों यूजिंग ओम्स लॉ। I is equal to V upon RS, V upon RS यूजिंग ओम्स लॉ। बच्चों हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V is equal to I into R। तो हमें I फाइंड करना है, वो बनेगा V upon RS। The value of V is 10 and the value of RS is 5, it means 2 ampere। It means a current of 2 ampere is flowing through the conductor। ये करंट मिल गया हमें जो इस 2 ampere करंट फ्लो रही है पूरे सर्किट में। Now we have to find the potential difference across R1 and R2। Let the potential difference across R1 is V1 and let the potential difference across R2 is V2। Now using Ohm's law, V is equal to I into R। So what is V1? The potential drop across resistor R1, it becomes the current flowing in the conductor, the current flowing through it into the resistor, so the resistance which is R1। Therefore as we calculated the value of current 2 ampere, the value of R1 is 2, it becomes 4 volt। ठीक है बच्चों। Similarly now the potential difference across R2 is V2, using Ohm's law it becomes current flowing through it into resistance R2। As we find the current which is 2 ampere and the value of R2 is 3, it becomes 2 into 3 or we can say 6 volt। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आपको अगर चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जितना हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, और जितना भी आपने इनका फाइंड किया है इन दोनों इंटीजर का वो मिला है 4 और 6। तो आप इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो वो भी 10 ही आना चाहिए। अगर वो 10 आता है यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो करेक्ट है, नहीं आए अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। तो उसका मतलब आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए बच्चों हमने फिर से रेजिस्टेंस यूज किए हैं। बच्चों को इस तरह का सर्किट है हमारे पास। वी हैव 3 रेजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, वी हैव 3 रेजिस्टर्स connected with the supply of 20 volt। Suppose this is resistance R1, R2 and this is R3।
let the value of R3 is 10 ohm, the value of R1 is 10 ohm, sorry 5 ohm, no sorry 10 ohm, 10 ohm, this is also becomes 10 ohm. Suppose this value is 30 ohm, 30 volt. We have three resistors R1, R2 and R3, each of 10 ohm resistor, and source given as 30 volt. Find the current in the circuit and equivalent resistance. तो बच्चों में दो चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो हम फाइंड कैसे करेंगे? तो बच्चों पहले सबसे पहले हमें क्या बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में, कि आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो बच्चों आपको देखा है इस फिगर में, दिस R1 एंड R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। और फिर उसके बाद R3 की हम बात करें तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे R12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वी कैन से इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2, समझ लो बच्चों इसका नाम दे देते हैं 1/R12। तो फॉर्मूला क्या पड़ा है बच्चों में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे केवल दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, इट बिकम्स 1/R1 प्लस 1/R2, इट बिकम्स 1/R12 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, और वी कैन से 2/10, और वी कैन से R12 इज इक्वल टू 5 ओम। तो बच्चों ये हमारा मिल जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों का। तो बच्चों आप नया सर्किट बना सकते हैं, आप चाहें तो बना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। देखिए बच्चों अभी हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 जो मिला हमें 5 ओम। तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सर्किट में, इसको रिमूव करके नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो इनका है इक्विवेलेंट। अब बच्चों देखो फिर से दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, सॉरी सर्किट में। इस बार ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस बिकम्स R3 प्लस R12, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हमें क्या करना होता है? उनको अलजेब्रिकली ऐड करना होता है। तो द वैल्यू ऑफ R3 is 10 ohm and R12 is 5 ohm, so it becomes 10 plus 5 15 ohm. This is equivalent resistance of the circuit. This is part number 7. ये सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हमें फाइंड करनी है करंट इन द सर्किट। तो करंट फाइंड करने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा? ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओम्स लॉ बोलते हैं I is equal to V upon R equivalent using Ohm's law. Now what is applied voltage? This is 30 volt upon 10 plus 5. This is 15, or we can say 2 ampere. It means 2 ampere is current flowing through the circuit. तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन। आप चाहें तो घर पे ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये लर्न हो जाए या समझ में आ जाए। कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।